ठीक है. So we'll start with question number 13. Question is OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. ठीक है भाई. This is question number 13. Draw the figure. This OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. O, P, B and Q. Right? Where what is given? Given that OA is equal to how much? That is 20 centimeter. Okay. Now we have to find out the area of the shaded part. Understood? Area of the shaded part. This will be the shading portion. Right? Yes. Acha. This much. Okay. So tell me, if this is 20, right? 20 centimeter. So this is also 20 somewhere. Clear? Yes. And this will also mean all the sides of the square is 20 centimeter. Understood? Now we have to find out the area of this shaded portion. So I think this will be the quadrant. Am I right? है ना? This will be the quadrant. So this will be the radius. But we do not have radius. Do we have radius? No sir. So diagonal will be the radius, but we do not even the value have the diagonals. Okay, so I think so. मेरे ख्याल से मुझे will use Pythagoras theorem. See, क्या निकालना है हमें? ये निकालना है ना? So if this is 20 and this is 20, so what will be the value of this hypotenuse? हाँ, सिखाया था मैंने कि अगर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, राइट? सो 20 means what? 400 plus 400. There is no need to add. We do not add this term. We just simply say how many times 400 is there? That is 2 times. तो उसको 2 बार लिख लो. Understood? और 400 का रूट क्या होता है? 2, 20. So this will be the final value of the hypotenuse. So this will be 20 root 2. Am I clear? Yes or no? Yes sir. ठीक है. चलो. Now we have to find the area of the shaded part. Right? So area of shaded part के लिए shaded part we will subtract what? Area of quadrant है ना? Area of quadrant minus का area of square, right? So what is area of quadrant? 1/4 of pi r square minus का side into side means side square. Okay, we have to use the value of pi as कितना? 3.14. नहीं, क्या बोला है? 3.14 बोला है. 22/7 है. 3.14. हाँ, 3.14. Clear? So 1/4 into 3.14 into what is the radius? Radius क्या होगा? हाँ, see this is the radius है ना? ये पूरा it will be the radius this much. So that will be 20 root 2 का square minus what is the side of the square? 20 means 400.
20 का स्क्वायर इज व्हाट 400. अंडरस्टूड? ओके, सो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं उसको. दिस इज 1/4 इंटू 314 अपॉन में मैं पॉइंट हटा देता हूँ, सो दैट विल बी 100 and 20√2 can be written as 2 times 20√2 into 20√2 minus of 400. Understood? अब if you think somewhere if you see अगर मुझे लगता है कट रहा है तो काट दो. 20 से ये 5 टाइम्स, 4 से ये 5 टाइम्स. अंडरस्टूड? और 5 से ये 5 टाइम्स. Am I clear? So 314 into √2 that is 2 minus of 400. Correct? So 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6 minus of 400 कितना आ गया? I think 228 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. So the area of the shaded part is 228 centimeter square. Understood? Okay, note it down. See, question number 14. O, A and B, this will be your C and D. The radius of this part is 21 centimeter and this much part is what? 7 centimeter. Clear? And we have to find out the area of this shaded part. This part we have to find out. क्या होगा भैया बताइए? हम लोग एक काम करेंगे ना. अच्छा, एंगल इज ऑल्सो गिवन. हाँ, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन विद अस. हमें और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है. अगर इफ आई टेक कैपिटल R इज 21 है ना, and small r is 7 centimeter. This is 21 centimeter. This is है ना, ये मुझे सेक्टर की तरह नज़र आ रहा है. राइट? इफ मुझे अगर ये निकालना है तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. इज दैट क्लियर? सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, area of sector which one? OBA, OBAO minus area of sector which one? छोटा वाला ODCO, ODCO. So I think it will be theta by 360 into pi capital R square minus, अच्छा you can give the name R1 R2 also है ना, और थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है ना, सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो विल टेक आउट कॉमन. हमें क्या कॉमन मिल रहा है अगर आप देख रहे हो? सो थीटा बाई 360 पाई इज कॉमन. अंडरस्टूड? दिस वैल्यूज विल बी टेकन आउट एज कॉमन. देन नेक्स्ट इज व्हाट? आर स्क्वायर माइनस ऑफ है ना. हाँ, अब थीटा वी हैव गिवन दैट इज 30 डिग्री. 360 अपॉन सॉरी इंटू 22/7 यूज करना है ना. 22/7. अच्छा, दिस विल बी 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटी ओवर देयर. ये कितना हो जाएगा? ये आई थिंक 12 हो जाएगा. So 1/12 इंटू 22/7 इंटू बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b हो गया और a माइनस का b हो गया. क्लियर? सो 1/12 इंटू 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 28 और ये हो जाएगा 14. थोड़ा कम कर दो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और अगर मैं और कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7. अंडरस्टूड? और करूँगा 2 3 और 2 2 तो जस्ट मल्टीप्लाई 22 इंटू 7 2 14 और अपॉन में 3.
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना है क्योंकि नीचे ऑड नंबर है। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। क्या होगा इसका आंसर? (308) is the simplification of this. If you wish to find out in decimal, so कितना आ रहा है? 102.6 बस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इतना। नोट इट डाउन। Now in 13th question we have to find out the area of the shaded part. Understood? And it says that this is a triangle, है ना? If you see the question, ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC taking as a diameter. So we have to find out this shaded part. Okay? अगर see, listen. If अगर मैं इसको छुपा दूं और इस पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दूं तो विल गेट दिस, यस और नो? मिल जाएगा? Yes. और फिर इस ये तो पूरा हट गया है ट्राइंगल। अब इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर ये जो पहले निकाला था इसको निकाल दूंगा तो शैल आई गेट दिस? क्या मुझे मिलेगा ये? गॉट माई पॉइंट? Yes. है ना? सो see what we have to proceed. Okay. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना? दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दिस मच। उसमें से हम माइनस करेंगे ट्राइंगल को। इज दैट क्लियर? रेडियस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो कितना है? ये भी आपका 14 हो गया। क्लियर? बिकॉज अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस क्वाड्रेंट को लेते हुए। अच्छा मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको सेकंड नाम देता हूँ, इसको थर्ड नाम देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे A B C, फिर इधर D दे दो, फिर इधर कहीं पे E P whatsoever you like. So I am taking out the area of the second part. Understood? Area of सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अंडरस्टूड? अब व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इज दैट क्लियर? So 1/4 of pi का वैल्यू 22/7. What is r? R here you get 14 into 14 minus half. Base is also 14 and height is also 14. Yes. Sir, company isn't goal triangle, right triangle 18. अरे यार ये कौन है? राघव? Yes sir. बेटा क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4। अच्छा, ओके। इसलिए बोलते हैं क्लास अटेंड किया करो। 7 1 जा 7 2 जा, क्लियर? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा। सो 22 into 7 is how much? 154 माइनस ये हो गया 2 1 जा 2 7 जा। 14 into 7 कितना होता है? 98। 154 minus 98 is how much? Yes. क्या? हाँ वो भी ये तो एक स्टेप में भी हो जाएगा, है ना? वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक करके इसलिए बता रहा हूँ कि पहले आप एक काम करो, क्वाड्रेंट से ट्राइंगल हटा दो तो यू विल गेट दिस। अब हमारा पूरा काम इस पे रहेगा। अंडरस्टूड? है ना? उस फिर पूरे सेमी सर्कल में से ऑलरेडी वी गेट दिस द सेकेंड पार्ट, तो विल रिमूव द सेकेंड पार्ट, सो विल गेट द थर्ड पार्ट। अंडरस्टूड?
हाँ, इज दिस करेक्ट ना? 96 नहीं, कितना है? 56, सॉरी, क्लियर? सो एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? 56. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. अच्छा मुझे बताओ, इफ अब वी गॉट दिस सेकेंड पार्ट, हमें मिल गया है सेकेंड पार्ट, क्लियर है? अब मुझे पूरे सेमी सर्कल में से सेकेंड पार्ट को रिमूव करना होगा, तो ये भी मेरे लिए क्लियर है. बट द थिंग इज दैट वी डोंट हैव द डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल. डू वी हैव? हाँ. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी, राइट, एग्जाम में पूरा लिखना. क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हो. 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. फिर आपको शॉर्ट ट्रिक लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया था. कितने बार है ये 2 बार है. और किसका रूट लोगे? 14 का. सो दिस इज द हाइपोटेनियस एंड विच इज ऑल्सो द डायामीटर. अंडरस्टूड ना? रेडियस आ जाएगा. 14√2 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे, सो योर रेडियस विल बी 7√2 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? यस. ये वाला, ये ओके. कभी कोऑर्डिनेट अगर पढ़ा हो, कभी मतलब कभी, तो मेरे पास यदि उसमें सिखाया था मैंने. अच्छा 9 + 9 इसका सिंप्लीफिकेशन दो, कैसे दोगे? इसका पूरा फाइनल आंसर बताओ. 18 रूट 18 को, हाँ फिर ठीक है, ये तो आसान था. 256 + 256 का रूट बताओ कितना होगा? नहीं, 256 + 256 का, हाँ इसका बताओ. टाइम लग रहा है? लग रहा है? yes, लग रहा है ना? जैसे अगर 400 + 400 है तो सर रूट 800. अब उसको पूरा फैक्टर निकालोगे, बेटर है. ये 400 कितने बार है रूट के अंदर? इसको लिख दो 2, रूट लगा दो. 400 किसका रूट होता है? आ गया आंसर. 256 + 256 कितने बार है? 2 टाइम्स. इसको, हाँ, तो आई होप इस तरीके से आपको आ गया होगा, है ना? ओके, ठीक है भाई. अब क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट, राइट. यहां पे कर रहा हूं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. सो द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, हाउ टू फाइंड? एरिया ऑफ थर्ड माइनस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट. करेक्ट है ना? ऐसे ही लेंगे. एरिया ऑफ थर्ड मतलब सेमी सर्कल, राइट? सेमी सर्कल का एरिया. सो द एरिया ऑफ सर्कल इज πr². सेमी सर्कल मीन्स व्हाट? हाफ πr². क्लियर? और माइनस का एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट ऑलरेडी वी हैव, दैट इज 56. so what? so 22/7. अच्छा हाफ पहले कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है. और रेडियस हाउ मच? 7√2 इंटू 7√2 माइनस का 56. 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, और ये आ गया 154 माइनस का 56. तो घूम फिर के कितना आ गया? दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट है ना? Yes or no? Yes, correct. Note it down. Last one is calculate the area of the shaded part. Design region in the figure common between the two quadrants of the circle of radius 8 cm. Any idea for this question? Sir,
एक काम करूँ ना, लिसन, बोलो। सेगमेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से भी छोटी एरिया निकालनी है और काटना। ठीक है, या फिर सर फुल टाइम निकाल। देखो ठीक है, करेक्ट है। मैं एक काम करता हूँ, सी लिसन, मैं इतने पूरे क्वाड्रेंट में से आई विल रिमूव द ट्राइंगल, करेक्ट है। सो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। यस और नो? देखिए, अगर इतने पूरे क्वाड्रेंट में से इफ आई रिमूव द ट्राइंगल देन व्हाट विल बी द लेफ्ट, दिस मच पार्ट, करेक्ट ना? ओके, और उसका ही जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दैट टाइम यू विल गेट दिस। आई होप आई एम क्लियर, मैं क्लियर हूं, राइट? तो ए बी सी डी, इसको ई नाम देता हूं मैं, ठीक है। एरिया मैं कौन सा एरिया निकाल रहा हूं, ये वाला, डी ई एफ नाम देता हूं इसको, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बी ई डी एफ, सो आई थिंक दैट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अंडरस्टूड? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चाहो तो हाफ कॉमन निकाल लो, जैसा भी आपको लगे, तो सिंप्लीफिकेशन का काम है, और इन सब का सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1/4 ऑफ 20, बेटे 22/7 वी हैव टू यूज ना, और रेडियस कितना है, दैट इज 8 इंटू 8 माइनस हाफ, बेस इज ऑल्सो 8, हाइट इज ऑल्सो 8, और उसका पूरे का स्क्वायर, अंडरस्टूड? यस और नो? फोर वन जा 4 2 जा, so multiply this 22 into 2 8 जा 16 अपॉन में 7, करेक्ट। और ये आ जाएगा 4 2 4 4 8 जा 32। सो ये पूरा जो शेडिंग पार्ट है, बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, 22 इंटू 16 करो, मल्टीप्लाई 22 इंटू 16, 356 है, 352 ना भाई, दिस विल बी 352। अच्छा 7 इंटू 32 करो, 224, और होल अपॉन में 7, क्लियर? ओके, नाउ 12 में 4 गए 8, 3 4 में 2 गए 2, इतना क्लियर है आप लोग को? बताइए, दिस इज द, है ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ दिस येलो पार्ट, दिस इज द एरिया ऑफ दिस येलो पार्ट, अंडरस्टूड? यस और नो? नाउ वी अब हम क्या निकालते हैं, अगर मुझे पूरा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट चाहिए, शेडेड पार्ट, पूरा शेडेड पार्ट का, सो दैट विल बी 2 इंटू 128/7, उसका डबल कर दो, सो यू विल गेट द 256/7। अगर आप चाहते हो डेसिमल में करना तो कर सकते हो, 4 अच्छा हाँ 36 पॉइंट है ना, ओके। So this is the final answer of the shading part. I hope this much is clear to you well. Yes or no? सर आपने एरिया, तो हम कर लेंगे इसको कितना, ABD कर लेंगे ना, हाँ सॉरी, ये ट्राइंगल ABD हो जाएगा।
क्लियर?